اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں؟ آپ مجھے ذرا بتائیں۔ میدان محشر کے اندر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، بیٹی ماں کی نہ ہوگی، چچا بھتیجے کا نہ ہوگا، بھتیجا چچا کا نہ ہوگا، یہاں تک کہ پوری کائنات کے اندر میدان محشر میں، قیامت کے میدان میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ حساب و کتاب کا دن لگا ہوا ہے، 1000 سال نہیں بلکہ 50,000 سال کا وہ ایک 50,000 سال کا وہ دن ہوگا جب میدان محشر میں حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا۔ یہاں پر میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مجھے اور آپ بتائیے، مل کر کے آپ بتائیے، کیا ہم نے یہ محنت کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے رب کو جا کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں اپنی زندگی کا حساب اپنے رب کو بھی دینا ہے۔ ہم نے زندگی کہاں گزاری یہ ہمیں حساب دینا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو کہاں پر برباد کیا یہ ہمیں حساب دینا ہے۔ لیکن ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں مرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ زندگی گناہوں میں ڈوبتی جا رہی ہے، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں میں بھی گناہگار ہوں، ہم سب گناہگار ہیں، لیکن اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن ذرا مجھے بتائیں، کبھی ہم نے اپنے رب کے سامنے رو کر کے توبہ کی ہے؟ کبھی ہم نے اپنے رب کو بھی منایا ہے؟ نہیں پیارے، آج ہم صبح سے لے کر شام تک کام میں اپنی زندگی گزارتے جا رہے ہیں، پیسہ کمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں کبھی افسوس نہیں ہوتا ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ ہمیں کبھی افسوس یہ نہیں ہوتا ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، فجر ہماری چھوٹ جاتی ہے، ظہر ہماری چھوٹ جاتی ہے، مغرب ہماری چھوٹ جاتی ہے، تمام کی تمام نمازیں ہماری چھوٹتی جا رہی ہے، صرف پیسہ کمانے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں۔ لیکن پیارے میرے رب فرما رہا ہے ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اپنی زندگی کا حساب ہم کیسے گزار رہے ہیں، کہاں گزار رہے ہیں؟ ایک ایک روپے کا حساب، ایک ایک لمحے کا حساب میرا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہم سے لے گا۔ ایک ایک منٹ کا حساب، ایک ایک لمحے کا حساب ہمارا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے لے گا۔ اور آپ بھول گئے، ہم اور آپ بھولے پڑے ہیں کہ ہمارا گزرتا ہوا ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک دن ہمیں موت کے قریب لے کر کے جا رہا ہے، ہمیں موت کے پاس لے کر کے جا رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کا بڑا خوبصورت بیٹا ہے، اس کا بیٹا اتنا پیار وہ اپنے بیٹے سے کرتا ہے جتنا کہ وہ اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا۔ اب آئیے، یہ اپنے بچے کو کبھی 100 روپے دیتا ہے، کبھی 200 روپے دیتا ہے، کبھی 500 روپے دیتا ہے، اور کہتا ہے میرے لاڈ جو تیرا من کرے وہ کھا کر کے آ جانا، جو تیرا من کرے وہ پی کر کے آ جانا، جو تیرا من کرے وہ کھا کر کے آنا، لیکن میرا پیسہ کبھی غلط جگہ مت اٹھانا۔ اب بیٹا خوش ہے، ابا نے 100 روپے دیے ہیں، کبھی 200 روپے دیے ہیں، اب یہ بیٹا اپنے ابا کے پیسے لے کر کے کبھی سیب کھا کر کے آ رہا ہے، کبھی انار کھا کر کے آ رہا ہے، کبھی جوس پی کر کے آ رہا ہے، کبھی ڈرائی فروٹ کھا کر کے آ رہا ہے۔ اب شام کو گھر آتا ہے، ابا جی پوچھتے ہیں بیٹا 100 روپے دیے تھے، اب بتا تو صحیح کہاں خرچ کیا؟ اب بیٹے نے کہا ابا اتنے کا جوس پی لیا، ابا اتنے کے ڈرائی فروٹ کھا لیے۔ اب ابا بھی خوش ہیں، میرے بیٹے نے پیسہ غلط جگہ نہیں اٹھایا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، ابا جی پیسے دیتے رہے، بیٹا کھاتے رہا اور آ کر کے حساب دیتا رہا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں جو بیٹا کل تک اچھی جگہ پیسہ اٹھا کر کے آتا تھا، اچھی جگہ اپنا جو کھانا کھا کر کے، اپنے اچھی اچھی چیزیں کھا کر کے اپنے جسم کو طاقتور بنا رہا تھا، باپ بھی بڑا خوش تھا، میرا بیٹا بڑا اچھا ہو رہا ہے، میرا بیٹا بڑا طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، ابا نے خوشی میں آ کر کے زیادہ پیسے دے دیے۔ اب یہی بیٹا ہے، آج وہ کھانا کھا کر کے نہیں آیا، پھل کھا کر کے نہیں آیا، جوس پی کر کے نہیں آیا، بلکہ جو پیسے ابا نے دیے تھے اس پیسے سے عیاشی کر کے آ گیا، زناکاری کر کے آ گیا، بدکاری کر کے آ گیا، شراب پی کر کے آ گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کل تک جو بیٹا اپنے باپ کو حساب دیا کرتا تھا، ابا میں نے اتنے کا یہ کھایا، ابا میں نے اتنے کا یہ پی لیا، کہ آج مجھے بتاؤ وہ اپنے باپ کو حساب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آج اس نے پیسہ غلط جگہ اٹھایا، آج اس نے پیسہ غلط جگہ اٹھایا ہے۔ اٹھانے کے بعد
अब थर थर कांप रहा है कि अब्बा को क्या हिसाब दूंगा, लेकिन हो सकता है अब्बा माफ कर दे, अब्बा को प्यार आ जाए। लेकिन प्यार है, अब आप गौर करके बताएं, जब हमारा बच्चा 1000 रुपए का हिसाब गलत जगह उठाने के बाद हमें नहीं दे सकता, तो प्यारे गौर करके बताओ पूरी जिंदगी का हिसाब, पूरी जिंदगी का हिसाब हम अपने रब को कैसे दे सकते हैं, हम अपने रब को कैसे दे सकते हैं कि हमने कहां जिंदगी गुजारी। आज अल्लाह ताला हमें पैसा ज्यादा भी देता है, पैसा कम भी देता है, जिस तरीके से पैसा ज्यादा आते रहता है हम गुनाहों की दलदल में फंसते रहते हैं। लेकिन याद रखो, याद रखो, याद रखो, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। बार बार इस आयत को पढ़ रहा हूं, इसीलिए पढ़ रहा हूं ताकि हम और आप अपने रब के सामने मुंह दिखाने के लिए तैयार हो जाएं। हमें मरने की तैयारी करना चाहिए। आज जिंदगी हमें किस मोड़ पर के ला करके खड़ा कर दिया है, आज हम और आप कहां आकर के खड़े हो गए, गुनाहों पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह। आइए मैं आपको बताता हूं, एक हदीस पाक शुरू करता हूं, आप जरा सुनते चलें। हमारे नबी ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, आज हमारे नबी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया था, जो रातों को रोते थे, रातों को रोते थे, रो रो करके दुआएं करते थे, ऐ मेरे परवरदिगार आलम रब्बी हबली उम्मती, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। एक मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने तमाम नबियों की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने तमाम नबियों की उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत आदम की उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत ईसा की उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत मूसा की उम्मत को जहन्नम में देखा। अल मुख्तसर आका, मैंने तमाम नबियों की उम्मत को जहन्नम में देखा। इतना सुनना था, जब इतना नबी ने सुना आंखों में आंसू आ गए, परेशान होने लगे। फरमाते हैं ए जिब्रील, जरा ये तो बता, तुमने तमाम की नबियों की उम्मत को जहन्नम में देखा, तमाम के तमाम नबियों की उम्मत को जहन्नम में देखा, ए जिब्रील जरा बताओ तो सही, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? तो हम जिब्रील अर्ज करते हैं आका आका आका, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी ने जब इतना सुना लबे जिब्रील से कि मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है, तो नबी का चैन बेचैनी में बदल गया, नबी का करार बेकरारी में बदल गया, नबी का सुकून बेसुकूनी में बदल गया। आंखों से आंसू आने लगे, रोने लगे, परेशान होने लगे। आपने अपनी उम्मत के गम में मदीना छोड़ दिया। मदीना छोड़ने के बाद वीरान जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद रब के सामने सजदा करते हैं। अब तमाम मदीने की गलियां सूनी हो गई हैं, मदीने के बाजार वीरान हो चुके हैं, मदीने की गलियां सूनी हो चुकी हैं। अब नबी नहीं मिल रहे हैं, तमाम के तमाम सहाबा परेशान हैं, हुजूर कहां चले गए हैं, आक़े दो जहां कहां चले गए हैं। लबे जिब्रील से इतना सुना है या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। अरे जरा गौर तो करो, हमारे नबी ने कितनी मेहनत की है, आज अपनी उम्मत के लिए हम तक दीन पहुंचाया, हमारे लिए कितना रोए हैं। पैरों पर बरम आ जाया करता था, नबी के पैर मोटे मोटे हो जाते थे, आंखों से आंसू निकलते थे, दाढ़ी मुबारक हुजूर की आंसू से तर हो जाती थी। आज हम अपने नबी को भूल चुके हैं, आज नबी की सीरत को हम भूल चुके हैं। हम जानते हैं, मैं मानता हूं हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, लेकिन आज भी अपने रब की बारगाह में आ जाओ, आज ही रब की बारगाह में तौबा कर लो। मेरा रब तौबा कबूल करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है, माफ करने वाला है। लबे जिब्रील से सुना है आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा, मदीना छोड़ दिया, एक गार में चले गए, रो रहे हैं, बेतहाशा रो रहे हैं। तमाम के तमाम सहाबा ढूंढते हैं। अब एक सहाबा, जब बड़े प्यारे सहाबा हैं, तमाम मोहब्बत नबी से करते हैं। अब पहुंचने के बाद चट्टिल मैदान में जाते हैं। मैदान में जाने के बाद नबी को कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, नबी नजर नहीं आ रहे, नबी नहीं मिल रहे। अब एक देखा, एक चरवाहा अपनी बकरियों को चुगा रहा था, बकरी को चुगा रहा था। अब लबों पे मुस्कान आई, हो सकता है इसने मेरे नबी को देखा हो, इसने हो सकता है इसने हुजूर को देखा हो। अब दौड़े दौड़े उसके पास जाते हैं। पास जाने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मेरे प्यारे भाई, जरा तू ये तो बता, क्या तूने मेरे नबी को देखा है? क्या तूने मेरे सरकार को देखा है? क्या तूने नूरानी सूरत वाले को देखा है? क्या नूरानी सीरत वाले को देखा है? या तूने जिसका सीना यासीन है, क्या तूने उसको देखा है? जिसका चेहरा दुहावल्लैली सजा है, क्या तूने उसको देखा है? अब ये चरवाहा कहता है, भाई मैं तुम्हारे पैगंबर को तो नहीं जानता, तुम्हारे रसूल को तो नहीं जानता, तुम्हारे नबी को तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है, इस पहाड़ी इलाके में, इस जंगल इलाके में, बयाबान
मक्के मैदान में एक गार से रोने की आवाज आती है, वो इतनी दर्द भरी आवाज से रो रहा है कि उसकी आवाज सुनकर मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया। बताएं कितना दर्द है उस आवाज में, जिसकी आवाज सुनकर जानवर खाना पीना छोड़ लें। अल्लाह ताला ने कितना प्यार मेरे नबी का जानवरों के दिल में डाला हुआ है कि जानवर खाना पीना छोड़ ले। और आज कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह बहरहाल उधर नहीं जाना चाहता। अब आप समझ गए, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अगर कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी अल्लाह की मखलूक है, कोई अल्लाह का ऐसा नबी है, कोई बंदा है कि जिसकी आवाज सुनकर जानवर भी खाना पीना छोड़ देते, वो मेरे तुम्हारे नबी हैं, मेरे तुम्हारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब दौड़े दौड़े जाते हैं, क्या देखते हैं, हुजूर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे में रखे हुए हैं, सजदे में सर है और रो रहे हैं, रब से इल्तिजा कर रहे हैं, रब से फरियाद कर रहे हैं, रब से दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अब सहाबी अर्ज करते हैं आका आपने मदीना छोड़ दिया, आपने मदीना वीरान कर दिया, आप अपनी तशरीफ ले चलिए, मदीना चलिए। अब नबी फरमाते हैं नहीं 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 नहीं, जब तक मदीना नहीं जाऊंगा जब तक कि अल्लाह ताला मेरे हर एक उम्मती को जन्नती ना बना देगा। आपने मना फरमा दिया, नहीं जा सकता। अल मुख्तसर बताता हूं, अब ये बात सैयदा फातिमा की बारगाह में इस वाक़ये को बयान किया जाता है तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में आती हैं। आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे आका मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान। आपने मदीना सूना कर दिया, आपने मदीना वीरान कर दिया, आपके बिना मदीने में दिल नहीं लगता। या रसूल अल्लाह आप सजदे से सर उठाइए और मदीना तशरीफ लेकर के चलिए। नबी फरमाते हैं नहीं 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 नहीं, जब तक नहीं उठाऊंगा सजदे से सर, जब तक कि अल्लाह ताला मेरे हर एक उम्मती को जन्नती नहीं बना देगा। इतना जब फातिमा ने सुना तो अर्ज करती है, आका अगर आज आपने सजदे से सर नहीं उठाया तो कयामत आने से पहले एक और कयामत आ जाएगी, अरे जिसका बाद ना कभी फरिश्तों ने देखा, ना आसमान ने देखा, ना चांद ने देखा, किसी चीज ने जिसके बालों के साए तक को ना देखा, आज वो चेहरा बेनकाब हो जाएगा। इतना नबी ने सुना। ये बात सुन करके हमारे तुम्हारे आका ने सजदे से सर को उठाया और सर को उठाने के बाद अपनी बेटी से फरमाया, ऐ मेरी बेटी अगर तुम अपने दुपट्टे का वास्ता ना देती तो मैं उस वक्त तक अपने सर को सजदे से नहीं उठाता जब तक कि मेरा अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नती ना बना देता। इसी को आला हजरत ने कहा कि अल्लाह का जहन्नम अब बिना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए।